So hello guys and welcome back to my channel Himalayan Devalaya. So I'm Rahul and once again I'm here to explore one another temple, and this time we are going to explore Baba Balaknath temple situated at Shahdalai and Deodsid. So basically there are three temples, two in Shahdalai and one in Deodsid. So we'll visit all three temples and make three different videos for all of them. So first we'll visit Shahdalai temple, that is Lassi Roti temple. So before we visit the temple, let me tell you a few stories about Baba Balaknath. So it is believed about Baba Balaknath that he used to take birth in every age, that is Satyug, Treta Yug, Dwapar Yug and Kali Yug. So we'll focus on his current birth, that is of Kali Yug, and as it is related to his previous birth, so we'll tell you some stories about that also. So in his previous birth he was named as Mahakal, and he was a devotee of Lord Shiva, and he was on his way to Kailash mountain. So on his way to Kailash he met with a lady named Mai Dharma. He stayed with her for 12 ghadis. So in India, as it is a unit of time, ghadi, so one ghadi is equal to 24 minutes. So he stayed there for 12 ghadis, and she asked him about where he is going and whatever he want to. So he told her each and everything. So Mai Dharma advised him that you should go to Mansarovar, as Mata Parvati used to come there to take bath on some special occasions. So whenever she'll come there, if she wants, you can visit Kailash, and that's what he did. And he went to Kailash with Mata Parvati, and I'll tell you this story in detail in some other videos. So and now let's focus on his current birth, that is of Kali Yug. So he is believed to born in Junagadh, Gujarat, to Lakshmi and Vishnu. Okay, so let's not get confused with Lord Vishnu and Lakshmi. His parents were just normal humans of Brahman family. So when astrologers were called up, he told them that this is not a normal child, he's a divine soul, because he was having golden hair and grace on his face. So he named him as Balak Dev. So he got his early education in his village only, and then moved to Kashi for higher education. So when he came back from Kashi, his father wanted him to get married, but he was not ready for that. So when his father forced him a lot, one night he just escaped from his home and went to the jungle, and there he met with a shepherd and stayed with him for some time. And then he moved to Girnar Parbat, Girnar mountain. Okay, there he met with Lord Dattatreya. Lord Dattatreya teached him many things. He gave him divine knowledge, siddhis, and he became a siddh over there. And Lord Dattatreya himself gave him a name of Balaknath. Then he started visiting India, the country, and at last he reached Shahdalai, Himachal Pradesh. Okay, and there he met with a lady named Ratno, Mai Ratno. She was a poor lady, old lady. So he went to Mai Ratno and asked her for a job, but as she was very poor, she refused, because and told him that I can't pay you the salary, so how you can work here. So he just told her that I don't need any kind of salary, whatever you will give me, I'll accept that. So she agreed with that. After that, whatever happened, I'll let you know by the priest of the temple. So we'll have him with us, Pandit Shambhunath Sharma ji. जब भ्रमण करके आए थे तो यहाँ पे शादलाई में बाबा जी रुके थे। हाँ बाबा जी माई रत्नों के पास माई रत्नों की के पास गैयाँ बहुत थी। उन्होंने देखा कि मैं गौ सेवा करूँगा, तो गौ सेवा के उपलक्ष्य में वो रोज़ गायें वगैरह यहाँ इसी शादलाई में आके गायें चराते थे। तो उस टाइम उसके उपलक्ष्य में जो माता ने सोचा कि खाने के लिए कुछ दिया जाए, तो माता भी उनके ये रोटी और लस्सी और साग वगैरह ले आती थी, और बाबा जी अपनी मक्की की लस्सी भी देते थे। हैं जी, मक्की की रोटी और मक्की की रोटी और लस्सी दी जाती थी। तो बाबा जी ने बोलते थे कि माता जी आप यहाँ रख दो, मैं जब मेरी इच्छा हुई तो मैं करता। तो बात रहते वो यहीं पे थे या फिर माता जी के घर पे रहते थे? नहीं, ये रहते यहीं के चूना लगाते, यहीं चूना यहीं माता जी आके रोटी लस्सी वहाँ से आके साथ में गाँव गड़िया नाम बड़ा नाम ये शादलाई में पड़ता है, वार्ड नंबर 6 में पड़ता है, वार्ड नंबर 6 में पड़ता है। और ये जो वृक्ष है बट वृक्ष है इसी टाइम से यहाँ पे? हाँ, बाबा जी की उससे पहले से ही जानता है। और जब बाबा जी ने चुना लगाया था उस टाइम यही उससे हाँ ये तो यहाँ पे बाबा जी ने कितना समय व्यतीत किया? यहाँ 11 साल बाबा जी ने टाइम व्यतीत किया। 1 साल कोरोना झाड़ी में लगाया। जब बाबा जी के यहाँ रमजान खत्म हुआ तो उन्होंने मतलब यहाँ एक बहुत करा था कि लोगों की फसलें उजाड़ दी,
और जिम्मेदार उनकी माता के पास गए, मैंने माता से नहीं ये फसल उजाड़ दी और वो सारी फसल नुकसान कर दिया। तो माता ने बोला चलो देखो दिखाओ खेत कहाँ है। तो उन्होंने क्या किया, जब देखने गए तो फसल जो है दुगुनी हरी भरी थी। वो चमत्कार दिखा दिया बाबा ने हुसैन। तो उसके बाद माता ने उनको डांटा उस टाइम? हाँ, जब माता ने डांटा, माता जी मैंने तेरे कुछ नहीं खाया, ये पड़ी है तो चिमटा मारा तो लस्सी का छा बड़ी पहाड़ी बात है, हम छा कहते हैं। तो छा नाम से ये राई नाम का जो चिमटा डाल के चिमटा मारा तो उन लस्सी का मतलब लड़ाई अंदर जो मंदिर में हाँ वो तालाब बन गया उसमें लस्सी का पूरा गुब्बारा भर निकला और तालाब भर गया। तो था इसी नाम से था तलाई नाम यहाँ का गाँव का। शाह का क्या मतलब है? था मतलब हम पहाड़ी बात लस्सी को कहते हैं शाह। अच्छा, शाह बोलते हैं। था तो मतलब जो एग्जैक्ट नेम है वो छाह तलाई है। छा तलाई एग्जैक्ट नेम छा तलाई, मतलब वो बाद में फिर शाह तलाई हो गया। हाँ जी हाँ जी, लेकिन वैसे छाह तलाई छा मतलब उस लस्सी से जो है यहाँ पे तलाई बन गई थी, तालाब बन गया था उस और रोटियाँ वाला दरख्त भी ऑटोमेटिकली वहीं था। मतलब पूरे 12 साल में तो 12 साल की उन्होंने लड़कियों का जो भंडार था वो दिखा दिया। वे दो रोटियाँ रोज की दिन की जो भी दिन की रोटी होगी वो सारा दृष्टांत दिखा दिया। वो स्थान भी मंदिर के अंदर अभी स्थित है, मंदिर के अंदर स्थित है। So guys, we'll take a pause over here and visit the temple first, that is Lassi Roti temple, and we'll continue our story in our next video. So let's visit the temple first. So this is the first gate of the temple. And this is the main gate of the temple. So let's enter inside. ये जो मंदिर है ये बिल्कुल बट वृक्ष के नीचे बना हुआ है। जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के बाबा जी ध्यान मग्न रहते थे, उसी पेड़ के नीचे ये बना हुआ है। ये सारा वही बरगद का पूरा एक ही पेड़ है ये, और चारों तरफ फैला हुआ है। और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी बनी हुई है। ये देखिए जड़ें हैं इस पेड़ की चारों तरफ, आप इसको देख सकते हैं। ये वही पेड़ है जिसके नीचे बैठ के बाबा जी ध्यान किया करते थे। यहाँ पे भी बाबा जी की मूर्ति है इस मंदिर के अंदर। ये भी बाबा जी का मंदिर है। ये देखिए दूसरी तरफ भी इसी तरह से इसकी जड़ें निकली हुई है। और जब बाबा जी ध्यान करते थे तो उस समय वहाँ पे एक धूना भी लगा होता था, और यही वो धूना है। और उसी टाइम से ये धूना आज तक यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए अखंड धूना। और ये मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति बनी हुई। ये देखिए थोड़ा दूर से व्यू दिखाते हैं आपको। ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। और चैत्र मास में यहाँ पे मेले लगते हैं शाहतलाई में, और उसी मेले की भीड़ इकट्ठा यहाँ पे हुई है। और ये एक दूसरा मंदिर है इसी मंदिर के साथ में, और यही वो जगह है जहाँ पे बाबा जी ने माई रत्नों को 12 साल की लस्सी और रोटी वापस की थी। वो जगह भी इस मंदिर के अंदर है, वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए पहले यहाँ पे एक छोटी सी झांकी बनी हुई है बाबा जी की गौओं की। ये बाबा जी की मूर्तियां यहाँ पे बनी हुई हैं। और ये पंचपीर हैं, इनकी मूर्तियां भी यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे माँ काली की मूर्ति बनी हुई है। और इसके साथ ये जो नेट के अंदर आपको जगह दिख रही है, यही वो जगह है जहाँ पे बाबा जी ने 12 साल की रोटियाँ माई रत्नों को वापस की थी।
जो आप देख रहे हैं अभी ये पेड़ और जो रोटियां बनी हुई है सीमेंटेड बनी हुई है, बट इसी पॉइंट पे वो पेड़ था जिससे 12 साल की रोटियां निकाली गई थी। ये देखिए यहाँ पे बाबा जी की मूर्ति बनी हुई है और उनके साथ ही बिल्कुल सामने माई रत्नों की भी मूर्ति बनी हुई है, और ये चिमटा और जो मक्की की रोटियां हैं वो भी उनकी मूर्ति यहाँ पे बनाई हुई है। ये एक और वृक्ष है जो इस मंदिर के ही अंदर है। यहाँ पे सबसे पहले जो है शिव मंदिर आता है, नंदी जी बिल्कुल सामने शिवलिंग के विराजमान है, और शिवलिंग के साथ में पूरा शिव परिवार यहाँ पे है। भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। शिवलिंग के साथ में माँ गौरी, गणेश और कार्तिकेय, नंदी, पूरा शिव परिवार यहाँ पे उपस्थित है। इसके बाद ये यहाँ पे वो लस्सी वाला स्थान है। ठीक इस मूर्ति के नीचे ही वो जगह है जहाँ पे चिमटा मार के बाबा जी ने लस्सी निकाली थी 12 सालों की। वो चिमटा अभी भी वहाँ पे मौजूद है और आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये चिमटा हम जूम करके थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। यही वो जगह है जहाँ से लस्सी निकली थी, और छाछ निकलने की वजह से यहाँ पे जो तलाई बनी थी उस वजह से यहाँ का नाम छा तलाई पड़ा था। ये बाबा जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है, लस्सी वाला स्थान। और राधा कृष्ण और गणेश जी की मूर्तियाँ यहाँ पे। इसके बाद बाबा जी की अलग अलग फोटोज यहाँ पे बनी हुई है, काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं। उसके बाद मंदिर के अंदर जो अगला मंदिर आता है वो है यहाँ पे माता का, दुर्गे माँ है। एक तरफ इनके हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, दूसरी तरफ भैरव की मूर्ति बनी हुई है। उसके बाद ये यहाँ पे बाबा जी की मूर्तियाँ हैं। माई रत्नों है, यहाँ पे बाबा जी है। और ये यहाँ पे अंदर मंदिर के अंदर एक और धुना है, ये भी अखंड धुना है जो तब से ही चल रहा है जब से बाबा जी यहाँ पे रहते थे। इसके बाद ये भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है जो बाबा बालकनाथ के गुरु थे। ये एक और बाबा बालकनाथ की मूर्ति यहाँ पे सामने देखने को मिल रही है। सो ये मंदिर के बाहर से जो गेट है वहाँ से कुछ इस तरह से मंदिर दिखता है। एग्जिट गेट है ये मंदिर का। So this was all for today. So see you guys in the next video, and if you're liking my video then please do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get notifications of all the upcoming videos.